चंबा के ऐतिहासिक मंदिर में नाबालिग से हुए दुष्कर्म। Never been in past history any sort of territorial boundaries between India and China. However, such a boundary has now came in being, and that boundary continues to remain a subject dispute. And behind those boundaries are our Tibetan brothers and sisters who continue to suffer under the subjugation, representative and repressive policies of China. For the third consecutive years, Tibet has again been ranked as the least free country in the world. This year in the World 2023 Freedom Index report of the Freedom House, last year UN human rights experts expressed serious concern over the large-scale colonial boarding schools in Tibet rapidly being implemented on a massive scale and referred to it as a way to assimilate Tibetans into minorities and culture, contrary to international human rights standards. Likewise, the forced mass DNA sample collection of the Tibetans, including kindergarten school, in an intrusive scrutinization of measures under. Okay, then we have 5 points to view these circumstances. We propose the following appeals to your government and urge you to. These 10 points: recognize Tibet as an occupied nation with its own independent and sovereign past backed by historical evidence. Number 2, desist from endorsing China's false narrative by labeling Tibet as a minority, referring to Tibet's occupation as an internal issue of Beijing, and proclaiming Tibet as a part of China, thereby aiding China's colonization of Tibet and the subjugation of Tibetans while denying us Tibetans the space and scope to negotiate for more meaningful freedom for Tibetans. Call on the People's Republic of China to re-engage in substantive dialogue with the representatives of His Holiness the Dalai Lama without preconditions to resolve the Tibet-China conflict through the middle way policy of seeking genuine and meaningful autonomy within the framework of the PRC Constitution. Fourth, call upon the United Nations Framework Convention on Climatic Change to launch scientific research studies on the PR government policies of exploitation of Tibet's natural resources and its negative impact on global climate change. Number 5, pressure China to ensure access to independent human rights organizations to monitor and report on the human rights situation, and likewise extend standing invitation to UN special reporters, to particularly those focusing on freedoms of opinions and expression, peaceful assembly and association, and human rights defenders, facilitating their visit to Tibet as soon as possible. Number 6, urge the PRO government to unconditionally release all Tibetan political prisoners, including Gengyun Chögying Yima, 11 pension Lama, whose whereabouts and well-being remain unknown since 17 May 1995. Number 7, place the human rights situation in Tibet in the context of the nature of the Tibet-China conflict as international and unresolved. Join the world leaders in displaying concern over human rights violation and religious repression in Tibet, and urge the government to adopt the acts to put Chinese officials on the national list of sanctions. Number 8, establish a national legislative framework to tackle China's network authoritarianism and disinformation campaign, which cause public mistrust in democratic institutions, political polarization, and threaten regional, global, geopolitical stability and peace. Number 9, expand and deepen your official and diplomatic engagements with the Central Tibetan Administration, which is the continuation of the former government Tibetan Independent Tibet in Lhasa as the legitimate representative of the Tibetan people. Number 10, to urge the legislators to express their concern, raise the voice of the human rights violation in Tibet at all the available platforms. We remain immensely grateful to your government and people for standing for Tibet, for standing for truth, and for keeping alive our faith in peace, justice. Please accept the assurance of our highest consideration, thanking you from our Parliament office. Thank you. Yes. From 77 years has passed. In Hindi. Okay. जैसा अभी प्रेस रिलीज आपको पढ़ा किया, आपने हिंदी में थोड़ा सा पढ़ो, तो इसमें हमारे प्रेस ये लिखा है, तिब्बत और भारत के संबंध
जो अभी अमेरिका और इंग्लैंड और अन्य देश के साथ संबंध हो रहा है, इसी तरह नहीं है। हमारा भारत और तिब्बत का संबंध है, तो हजारों साल के संबंध है, कल्चर है, ज्योग्राफी है, जो हमारा धर्म है, सभी के हमारा पुराना बहुत संबंध है। तो जो चीन का विस्तार नीति, एक्सपेंशनिस्ट जो पॉलिसी है, वो आज शुरू नहीं हुआ, कल से शुरू नहीं हुआ, ये 1949 से शुरू हुआ है जो विस्तार नीति है चीन का। उसके वजह से 1959 में तिब्बत के देश में कब्जा किया है। उसके बाद 1962 में चीन ने भारत देश को कब्जा करने की कोशिश किया था। फिर 1954 में पांचशील के पीस एग्रीमेंट होते हुए भी उनको नेग्लेक्ट करके मुख से चीनी हिंदी बात कहते हुए भारत को आक्रमण किया था। तो इसलिए जो विस्तार नीति जो चीन कर रहा है, ये हमारा देश को भारत अकेला नहीं, सारा साउथ एशिया कंट्री में भी ये खतरा चल रहा है, खतरा हो रहा है। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि तिब्बत इशू, तिब्बत की समस्या तिब्बत का अकेला नहीं है, ये भारत की समस्या है, साउथ एशियन समस्या है। खास करके आपको ये जरूर जागरूकता होना चाहिए आपके मीडियम के थ्रू से, क्योंकि जितना 90% ऑफ सिविलाइजेशन ऑफ इंक्लूडिंग इंडिया, तो जो साउथ एशियन कंट्री है, उसका जो पीने का पानी है वो तिब्बत से बह रहा है। 10 मेजर रिवर्स फॉलिंग फ्रॉम तिब्बत। सो उसी के लिए चीन उसको पंगा लेने के लिए 11 डैम पहले से बन चुका है, और अभी बन रहा है कि सुबह डैम बना रहा है। उसको अगर बन जाएगा तो हमें साउथ एशियन कंट्री से और भारत को पानी का दिक्कत पड़ेगी। तो इसीलिए हम सबको जगाना चाहिए, जगाना चाहिए। वी शुड अलर्ट, वी शुड स्टैंड फॉर द politically stand against the Chinese. Indian and all the loving peace countries should stand against the Chinese expansionist विस्तार नीति के खिलाफ खड़ा होना की जरूरत है। इसकी है दूसरा बात, हम यहाँ आया है, हम जिनको हमारा गवर्नमेंट ने भेजा गया है कि भारत की गवर्नमेंट को, भारत के निवासी सभी लोगों को हमें धन्यवाद कहने के लिए भेजा, क्योंकि चीन ने जब हमारा देश को कब्जा किया था तो हम 1959 में हम भारत में हमारा गुरुजी के साथ शरण लिया। तब से हमें हमारा संस्कृत, हमारा धर्म, हमारा लैंग्वेज सारा जीवित रखने के लिए आप लोगों ने सुविधा दिया है। हमें एक माँ ने आपको बच्चे को प्यार दिया, उसी तरह भारत देश में भारत लोगों ने हमें पाला पोसा है। उसी की वजह से तिब्बत की समस्या में नहीं रहा है। आजकल तिब्बत की समस्या एक इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय के इश्यू बना है। ये सारा भारत के दिन है, भारत के लोगों का दिन है। इसलिए हमें हमारा गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को धन्यवाद करने के लिए भेजा है। तो कल परसों 27 तारीख से हमें यहाँ है, हमारे जो 45 मेंबर पार्लियामेंट है उससे 11 ग्रुप में बांटा गया है। हम हर एक आधा साल में हर दुनिया में हर स्टेट में जाता है, इसके समर्थन, लोगों का समर्थन जुटाने के लिए, लोगों को धन्यवाद कहने के लिए, लोगों से हमारे तिब्बत में क्या हो रहा है, क्या जो हो रहा है उसी के सिलसिले में अभियान चलाने के लिए हमें भेजा गया। इस बार मेरा साथी तेंबा यमला जी और ईशी डोमला जी, हम तीनों को जम्मू कश्मीर और लद्दाख और हिमाचल में ड्यूटी लगा गया। तो हम 27 तारीख से यहाँ पर लोगों ने, सभी पार्टी के नेता लोगों ने, सभी जो हमें मिला था, यहाँ प्रतिनिधि मिला था, जो NGO से मिला था, कोई एजुकेशन का तो मिला था, सभी ने हमें बहुत भरपूर ने हमें समर्थन दिया था। उसके लिए हम आपके थ्रू सभी को धन्यवाद कहना चाहता हूँ जी। आने वाले दिनों में जीत बंदी होने वाला है, बाहर से बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्षों के अध्यक्ष यहाँ पर, क्या आपकी मूवमेंट जो है वो तरीके से चाइना की विस्तारवादी नीति को लेकर उनके समक्ष कोई डेलीगेशन जाएगा? हमारा तो अभी 62 साल हो गया। हमारा तो ये चाइनीज अगेंस्ट जो चाइनीज पॉलिसी चल रहा है, साउथ एशियन का दुनिया में चला रहा है, उसी का अगेंस्ट हमें करते रहता है। इस बार भी हम करेगा। Almost last 77 years has passed away now. Then, there is any hope of today that Tibet will be part of India again?
See, I can't say that means anything can be changed. In 1991, that nobody thought that racial will be fall down. Racial will fall down like that, but it suddenly happened like that. जो होगा उस वक्त होगा, इसके बारे में मैंने कुछ नहीं सकता है। मैं एक बताना चाहती हूँ, तिब्बत है ना, जो 6 मिलियन टिबेटन्स है, हमारा देश का पॉपुलेशन है 6 इंडिया नहीं, नॉट इन इंडिया, तिब्बत इटसेल्फ में हमारा पॉपुलेशन ओनली 6 मिलियन है, और चीन है 100 मिलियन, है ना। अभी तिब्बत में क्यों आया? तिब्बत का जो रिसोर्सेस सबको सत्यानाश करने के लिए आया। उधर आके 1959 के पहले उधर आके देख लिया, हमारे रिसोर्सेस सब देख के उधर कब्जा कर लिया। अभी जो ये चीन इकोनॉमिकली बहुत मशहूर हो रहा है ना, वो सब टिबेटन का रिसोर्सेस ले जा रहा है। अभी जो है ना, अभी रिसेंटली हो गया 300 आदमी जो हमारा एंसेस्टर अपना घर में बैठा है, 300 पहले 100 साल में अपना पेरेंट्स लिव कर रहे हैं, उधर का सब आदमी को एक दूसरा जगह ले जा रहा है, क्योंकि उन्होंने आर्कियोलॉजिस्ट ने देख लिया उस माउंटेन में सोना एंड प्रेशियस रिसोर्सेज पड़ा है, इसलिए उसको रिलोकेट करके वो खुदाई करना शुरू कर दिया। और एक बात और है, टिबेटन्स ओनली 6 मिलियन से है, इसलिए चीन लोग क्या करता है, हमारा आइडेंटिटी को सत्यानाश करने की कोशिश में है। हमारा टिबेटन्स का एक करके डीएनए कलेक्शन कर रहा है, डीएनए का खून ले रहा है, उसका मॉडिफाई करके चीन का हमारा वो डीएनए के सत्यानाश करके चीन का डीएनए डाल रहा है, उसको हम लोग को चीन बनाने की कोशिश में है, ये है। और टिबेटन पीपल को चिल्ड्रन अप टू 3 years ऑफ एज, लोग 3 साल हो जाएंगे तो उसके घर से लेके एक कॉलोनियल बोर्डिंग स्कूल में जाके उसको मैंड्रिन पढ़ा के ब्रेन वॉश करके चीन बना रहे, कंप्लीटली चीन। और ल्हासा में ना हमारा तिब्बत, हमारे 6 मिलियन टिबेटन से हैन चाइनीज ऑलरेडी 9 मिलियन हैन चाइनीज are living in Lhasa. Very identity of Tibetan people is in stake. We are the minority in our own homelands. जो इस समय मौजूदा समीकरण है, इसमें आप भारत से क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं? भारत से हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं? भारत हमारा नीति है वो जो सिर्फ नेबर्स का नहीं है, हम वी आर कंसिडरिंग इंडिया वेरी रिवर्डली एज अ गुरु। Buddhism was founded in India. Lord Buddha was enlightened in India, and our language and script was all based from India, and our centuries old trade, mutual relationship. हम भारत को बोलना चाहती हूँ कि आप चीन का जो टेबल में बैठकर मीठा बात से मत ये करना होना, क्योंकि अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारा बॉर्डर में, तिब्बत के बॉर्डर में इतना ज्यादा, तिब्बत और इंडिया बॉर्डर इतना ज्यादा आर्म एम्युनिशन बेसमेंट कैंप सेट हो रहा है, वो चीन टिबेटन्स के लिए नहीं है, वो सारा पूरे साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया इंक्लूडिंग इंडिया के लिए बहुत खतरा है। और हमारा नदी जो बह रहा है तिब्बत से 10 नदी बह रहा है साउथ ईस्ट एशिया एंड इंडिया को, और ब्रह्मपुत्र सतलज सब तिब्बत से आ रहा है। उधर है ना ऑलरेडी 11 डैम्स बन चुका है चीन लोग ने, अभी एक बड़ा सबसे दुनिया से 3 गुना बड़ा डैम जो बना रहा है वो अब बॉर्डर में है। जब ये बन जाएगा तो इंडिया में पानी का, साउथ ईस्ट एशिया में पानी का पूरा कंट्रोल चीन के हाथ में होगा, और उसको पानी जहां चीन में पानी की कमी उस वक्त उधर डाइवर्ट कर लेगा, पानी का पूरा कब्जा उसके हाथ में है, बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। अभी टू लेट नहीं है इसलिए बात करने का, अभी चीन इधर बात करने G20 में आ गया, कुछ भी मसला प्लान करके कुछ भी फायदा नहीं होगा, क्योंकि unless and until Tibet problem issue will be solved, nothing will happen, nothing progress, prosperity. It's all the hands in Chinese hands. Nothing will happen. विस्तारवादी नीति को देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन ये विकल्प है या कोई और विकल्प? आपने आपका क्वेश्चन किया था, हम भारत से क्या उम्मीद करता है? भारत से पूरा उम्मीद है, हम बोल रहे हैं कि भारत ने हमें संभाला है, हमारा जो मैंने पहले बोला है कि भारत की वजह से हम अभी जिंदा है, तिब्बत के इशू जिंदा है, आगे भी तिब्बत के जो प्रॉब्लम है ये सॉल्व होगा भारत की वजह से, क्योंकि जो तिब्बत की समस्या है ये तिब्बत अकेला का नहीं है, ये समस्या भारत की समस्या, जितना तिब्बत को नुकसान है उतना बराबर भारत का भी है, जितना तिब्बत का फायदा है उतना बराबर भारत को भी है, उसी की तरह जितना फायदा तिब्बत और भारत को है उतना साउथ एशियन कंट्री है। तो दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम ऑफ द ओनली टिबेटन्स,
तो हम उम्मीद है, हम विश्वास है तिब्बत के समस्या को हल उस भारत ही करेगा, क्योंकि अभी भी तिब्बत का जो समस्या जीवित रहा है वो भारत की वजह से रहा है। आगे भी जो हल होगा वो भी भारत वजह से होगा। सर जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश के पास चाइना जो है वो कंस्ट्रक्शन अपनी बढ़ा रहा है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो जैसा कल परसों जो चीन ने नया मैप रिलीज किया है, इट इज टोटली कंडेमेबल। दे हैव नो राइट। Why I'm saying they have no right? Because there's no border between India and China. The border, so-called territory, is between the Indian and Tibet. So उनको totally illegal है, उनको कोई right नहीं है, उनको ऐसा कोई हक नहीं है। तो अभी जो नहीं है, इसलिए इसे totally condemnable, ये meaningless है, इसका कोई मतलब नहीं है। अगर border के बात होगा, तिब्बत के बॉर्डर के बारे में बात होगा तो बिना तिब्बती से ये बॉर्डर का हल होने वाली है। थैंक यू। बाइट करनी है सर, बाइट करनी है। तो पार्लियामेंट्री डेलीगेशन तिब्बत का दावा सेरिंग ये शीडोल मात इनपायारफुल जो है मीडिया से खिताब कर रहे थे। उनका तिब्बत एडवोकेसी प्रोग्राम शेड्यूल्ड है जो कि शुरू हो चुका है 27 अगस्त से ही और 12 सितंबर तक जारी रहेगा, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी शेड्यूल्ड है। इससे पहले दिल्ली में भी 5 दिन की मीटिंग 7 अगस्त से 11 अगस्त तक थी, स्ट्रैटेजिक मीटिंग इस डेलीगेशन की। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। सीएम सुक्खू ने मंडी में राहत कार्य के लिए वायुसेना का जताया आभार। वायुसेना ने मंडी के दुर्गम इलाकों तक 34 टन राहत सामग्री पहुंचाने के लिए 5 दिनों में भरी थी 23 उड़ानें। शिमला के कृष्णानगर में बीमारियों का बढ़ा खतरा। लैंडस्लाइड साइट का 500 मीटर का इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित। लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध। पूरा इलाका दुर्गंध से भर गया। मंडी से कुल्लू नेशनल हाईवे फिर से बंद। सुरंग के मुहाने पर भारी। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। दफा 370 मामले पर समाअत इंतहाई अहम मरहले पर पहुंच गई है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सरबराही में 5 जजों की आईनी बेंच इस मामले की समाअत कर रही है। इस मामले में आज 13वें रोज की समाअत जारी है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता मरकजी हुकूमत की जानिब से आर्टिकल 370 को हटाने के बारे में बहस कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के मामले में मरकजी हुकूमत की जानिब से एसजी ने कहा कि हुकूमत किसी भी वक्त जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवा सकती है। मरकजी हुकूमत ने कहा कि वोटर लिस्ट भी तकरीबन तैयार है। इंतखाबात कब होंगे इसका फैसला रियासती इलेक्शन कमीशन और मरकजी इलेक्शन कमीशन करेंगे। मरकजी हुकूमत ने कहा कि पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 सतही पंचायती राज निजाम नाफिज किया गया। पहला इंतखाब पंचायत के लिए होगा। तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर को रियासती दर्जे की बहाली के लिए वक्त लगेगा। हुकूमत रियासती दर्जे की बहाली के लिए टाइमलाइन देने से कासिर है। यूटी का दर्जा आर्जी है। उन्होंने कहा कि लेह हिल डेवलपमेंट काउंसिल के इंतखाबात खत्म हो रहे हैं। करगिल के लिए सितंबर में इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि दरअंदाजी में 90% कमी हुई है और पथराव में 97% कमी हुई है। सिक्योरिटी एहलकारों की हलाकत में 65% कमी हो गई है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने को लेकर दाखिल याचिकाओं में आज 13वें दिन की सुनवाई लगातार जारी है। लेकिन आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से 3 अहम बातें आज सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी गई। केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने को लेकर केंद्र सरकार तैयार है। कभी भी चुनाव का ऐलान किया जा सकता है। हालांकि जम्मू कश्मीर में त्रिस्तरीय चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। वोटर लिस्ट भी कंप्लीट कर लिया गया है। अब आखिरी फैसला राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को लेना है कि वहां पर चुनाव कब करवाना है।
आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से यह भी दलील दी गई कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद किस तरह विकास की जो रफ्तार है वो आगे बढ़ी है। स्टोन पेल्टिंग की जो घटनाएं थी उनमें बहुत ज़्यादा कमी आ गई है। कमी की अगर बात करें तो स्टोन पेल्टिंग की घटना शून्य हो गई है। साथ ही साथ वहां पर स्कूल, कॉलेजेस, अस्पताल सब खुलने लगे हैं। ये तमाम वो प्रक्रियाएं हैं जिन प्रक्रियाओं के तहत जो एजेंसियां हैं वो चुनाव कराने की प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ेंगी। केंद्र सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में रहने वाले तमाम लोगों को फिलहाल मुख्य धारा में जोड़ने के लिए तमाम अभियान चलाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री विकास योजना की अगर बात करें तो 52 परियोजनाएं फिलहाल जम्मू कश्मीर में लॉन्च की गई थी, जिसमें से 32 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 को हटाने के बाद विकास की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज हुई है, जिसमें न केवल युवाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई है बल्कि अलगाववादी संगठनों पर भी लगाम लगाने के पूरे कठोर कदम उठाए गए हैं। कपिल सिब्बल ने फिलहाल केंद्र सरकार की इस दलील का विरोध किया। कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया कि यह मामला संवैधानिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है, लिहाजा संवैधानिक पीठ इस चीज को ध्यान में न रखे। जिस पर डीवाई चंद्रचूड़ की तरफ से कहा गया कि कश्मीर के रोड मैप को जानना बेहद आवश्यक है, लिहाजा उनको ये जानना था कि जम्मू कश्मीर की विकास को लेकर, एक मजबूत लोकतंत्र को लेकर एक राज्य में केंद्र सरकार के द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से आज सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया कि अंशकालिक दौर के लिए फिलहाल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को बनाया गया है, लेकिन उनके पास इसकी जानकारी नहीं है कि जम्मू कश्मीर को भविष्य में पूर्ण राज्य का दर्जा कब तक दिया जाएगा। बहरहाल आज इस पूरे मामले में केंद्र सरकार की तरफ से अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की जो दलीलें हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। अभी फिलहाल मजदूर संघ की तरफ से हरीश साल्वे कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि आज मामले की सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर केंद्र सरकार को इस दिशा में और भी दलीलें रखनी हैं तो वो आने वाले दोपहर में इस पूरे मामले में अपनी दलीलें रख सकते हैं। लेकिन कपिल सिब्बल ने फिलहाल केंद्र सरकार की इस दलील का विरोध किया, जिसका कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा अब सियासी घमासान के तौर पर देखा जा सकता है। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली। सर, जो तुषार मेहता ने ये कहा है कि इलेक्टोरल रोल्स जो हैं, इलेक्टोरल रोल्स अपडेट हो रहे हैं और काफी हद तक अपडेट हो चुके हैं, काम पूरा हो चुका है, सरकार तैयार है इलेक्शन करवाने के लिए, लेकिन अंतिम फैसला जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को लेना है। आप किस तरह से देखते हैं? ये जो फैसला है, लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव कब अनाउंस होंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में तुषार मेहता जी ने जो ये कहा है कि हम तैयार हैं, वो पहले भी कहते आए हैं कि इलेक्शन तैयार हैं, और जो इलेक्टोरल रोल्स का बहाना ये कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है। वो बहुत अरसा पहले उसकी रिवीजन हो चुकी है, उसके रोल्स भी सामने आए हैं, लेकिन सवाल यह है कि वो अभी ये इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डाल रहे हैं कि उनको फैसला करना है, वो करेंगे तो फिर हम करेंगे। तो जब इलेक्शन कमिश्नर को पूछते हैं तो वो कहते हैं जब गवर्नमेंट कहेगी कि हालात ठीक हैं तो फिर करेंगे। तो इसलिए ये वेलकम स्टेप है कि अगर वो चुनाव अनाउंस करते हैं, जब तक चुनाव अनाउंस नहीं हो तब तक गैसिंग होगी। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये चीज चल रही है, उसके ऊपर तो हम ज्यादा बहस नहीं करेंगे, वो कल वहां से क्या फैसला आता है वो तो उनके ऊपर हमने छोड़ेंगे। लेकिन हम अभी जो तुषार मेहता साहब कह रहे हैं इस पर कितना भरोसा किया जाए, कितना ना किया जाए, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे जम्मू कश्मीर में, और कभी एक बहाना होता है, कभी दूसरा बहाना होता है। गवर्नमेंट कहती है हालात ठीक हैं, सब कुछ ठीक है, तो हम 3 साल से कह रहे हैं कि जब हालात ठीक है तो चुनाव कराओ। और चुनाव के साथ जो दूसरी चीज है कि स्टेट का दर्जा भी बहाल करो। सुप्रीम कोर्ट में तो ये भी बहस चल रही है कि स्टेट को दर्जा जो है, यूनियन टेरिटरी में चुनाव कराना ऐसे ही है जैसे म्युनिसिपैलिटी है, तो स्टेट का दर्जा बहाल हो ताकि यहाँ के लोग नुमाइंदे बने, जो बड़े बड़े फैसले होते हैं वो फैसले लोगों के नुमाइंदे करें। स्टेट का दर्जा बढ़ाने की जहां तक बात है तो तुषार मेहता का ये कहना है कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जो एलजी का प्रशासन है, काफी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट का काम हो रहा है, उन्होंने उसका पूरा ब्यौरा दे दिया, और साथ ही ये कहा कि लगातार ये कोशिशें हो रही है कि स्टेटहुड दिया जाए, लेकिन अभी वो कुछ उस पर नहीं कह पाएंगे। क्या कहेंगे आप? कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, लोगों के ऊपर बोझ के ऊपर बोझ डाल रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं हो रहा है, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, वो बनाते जाएं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ये जो सेटअप है ब्यूरोक्रेटिक सेटअप, ये किसी भी मुतबादल डेमोक्रेटिक सेटअप का मुतबादल नहीं हो सकता है।
जितने भी फैसले लिए जा रहे हैं वो लोगों के खिलाफ हैं, लोगों के उस इंटरेस्ट के खिलाफ है। लोगों के जो नुमाइंदे होते हैं वो जो फैसला करते हैं उसमें लोगों की विल शामिल होती है। तो इसलिए ये फैसले जो लिए जा रहे हैं वो तब तक जब वो लोग इलेक्ट होके आएंगे उनको बाज़ाब्ता तौर पे पता लगेगा भाई क्या सूरत है। तो इसलिए क्योंकि ये जो सेटअप बना हुआ है, हम 3 साल से तो 4 साल होने लगे, अब इंतजार कर रहे हैं कि डेमोक्रेटिक सेटअप बहाल हो जाए। डेमोक्रेसी जब बहाल नहीं होगी तो ये ब्यूरोक्रेटिक सेटअप किसी को मंजूर नहीं। श्रीनगर में जम्मू कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के हवाले से की मीडिया नुमाइंदों के साथ बातचीत। It is all happening in the Supreme Court. As I told you, that we're very hopeful. You know, the case is very strong. You don't need to be a great lawyer or a great genius or rocket scientist to actually see that the weight of the arguments on both sides. You know how legally weighty one argument was, and how weightless in the context of legality the other argument is. For a moment, okay, we accept they announced that election, but what about the restoration of the state? That's what I'm saying, that even on statehood they are evasive. See, the bigger question, as I said, is that is J&K still a special state? And is this ill treatment just meant for J&K? Or would this be a new norm, wherein states will be converted into UTs? This is something which Supreme Court probably needs to also think about, ponder about. And people of India especially need to ponder about. What is your next step as a political? We really can't do. I mean, say, what can we do? India, we are a very big country. You know, there is a central government, and it seems that all the might of the central government is meant for the people of J&K. Why they are being denied democracy? Why people who don't belong to this state are ruling, calling the shots, while as in all the other states and even UTs, it is the people of those states who actually rule, who decide, good or bad. That's what democracy is all about. That's what it is all about. How we have evolved. We evolved by accepting the fault lines in our democracy and helped it to evolve over a period of last 7 decades. Nowhere in the history has there been intervention. If there have been any interventions, they are today remembered for notoriety, not for fame. For example, there was emergency. That was one thing, one place, I think, when there was an intervention. Otherwise, it has been a flawless evolution of democracy. And this will be another one. That you deny the people of J&K the right to elect their own rulers. Do you still hope, after these the statements given by government about elections and duty statehood status, do you still believe the larger question, which is 370 and 35A, you have good hopes that something will come? You see, the only hope that we have today in a very highly polarized society that we have in India today is the judiciary. Judiciary is supposed to be above polarization, is supposed to be above caste, creed, color, or whatever. It has to go within the ambit. एडवोकेट मुर्तजा खान ने कहा कि इलेक्शन कराने के लिए किसी भी वक्त तैयार रहने। हुकूमत के बयान पर कहा कि ये कोई नई बात नहीं है, हमने ये सब सुना है। कुछ आदादोशुमार भी दिए गए, लेकिन कपिल सिब्बल ने भी इसकी मुखालफत की। जो कुछ कहा गया उसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट में 370 को लेकर सुनवाई चल रही है, लेकिन आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ज़्यादा अहम था, क्योंकि मरकजी हुकूमत को एक जो पॉलिटिकल रोड मैप है जम्मू कश्मीर के लिए उसका खुलासा करना था। आज उसके बारे में तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल की तरफ से बताया गया उस पर ज़्यादा गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट मुर्तजा खान साहब, XMLC भी हैं। सर, जिस तरीके से आप क्योंकि सियासतदान भी रहे हैं, जिस तरीके से जो तुषार मेहता साहब की तरफ से जो बताया गया कि अभी फ़िलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव के लिए सरकार तैयार है, पूरी तरीके से तैयार है, और पहले जो पंचायत के चुनाव होंगे, फिर नगर पालिका के होंगे, उसके बाद असेंबली के चुनाव होंगे, आप क्या कहेंगे? देखिए, ये कोई नई बात तो है नहीं। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, जिस तरीके से चीफ जस्टिस साहब के साथ इनका एक स्टेटमेंट देने का आज कमिटमेंट थी, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये कोई कंक्रीट रोड मैप के साथ सामने आएंगे। बट उन्होंने वही बातें की हैं जो हर तीसरे दिन मीडिया में हम कभी पार्लियामेंट के ऐवानों में से किसी एक ऐवान में या किसी पॉलिटिकल लीडर के स्टेटमेंट में देखते हैं, उससे हट के कुछ भी नहीं था। बल्कि उन्होंने तो कुछ फर्जी किस्म के फैक्ट्स जो हैं वो डिस्क्लोज करना शुरू कर दिए, जिसके ऊपर सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल साहब ने रिएक्ट किया और बहुत
अप्रोप्रिएट तरीके से रिएक्ट किया कि अगर तुषार मेहता साहब वो फैक्ट्स कोर्ट के सामने लेके आएंगे जो रेलिवेंट नहीं है असल इश्यूज़ को डिसाइड करने के लिए, और ऐसे फैक्ट्स हैं जिनकी बुनियाद भी कोई नहीं है, तो उनको काउंटर करने के लिए फिर हमें भी उसका जवाब देना पड़ेगा। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब ने इंटरवीन किया और कहा कि ये जो फैक्ट्स हैं ये कोर्ट के असल इश्यूज़ को डिसाइड करने के लिए रेलिवेंट नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी कपिल सिब्बल साहब का ये कहना था कि अगर ये दलीलें या इस तरह के फैक्ट्स ये कोर्ट के सामने लेके आ रहे हैं तो कोर्ट को चाहिए कि इन फैक्ट्स को डिस्कार्ड करे, वरना फिर हमें उसका काउंटर फाइल करना पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात तो वाजे हो गई कि अब जो पूरी गेंद है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पाले में है कि उसको कब चुनाव कराना है, वोटिंग लिस्ट तैयार है, ये तमाम बातें जिस तरीके से कही गई। यहाँ ये केस कोई इलेक्शन कराने का नहीं है। इशू ये नहीं है कि इलेक्शन कब होंगे, इशू इससे बहुत बड़ा है। इशू ये है कि जो 370 की एब्रोगेशन हुई है या डी ऑपरेशनलाइज किया गया इसको, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड था या नहीं था, ये सबसे बड़ा इशू है। ये जो है ये तो कोर्ट के सामने डिटर्मिनेशन के लिए इशू भी नहीं है। कोर्ट के सामने दूसरा बड़ा इशू ये है कि जो स्टेट को जिस ढंग से रीऑर्गेनाइजेशन के बाद इसको यूटीज़ में बदल दिया गया है वो फैसला दुरुस्त था या नहीं था। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और उनकी साबिका बीवी पायल अब्दुल्ला के दरमियान अज़वाजगी तनाज़ा जारी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि वो पायल अब्दुल्ला को हर माह 1.5 लाख रुपए भत्ता अदा करें। दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला से कहा कि वो अपने बच्चों को हर माह 60,000 रुपए का तालीमी अलाउंस दे। ये हुक्म दिल्ली हाई कोर्ट ने पायल अब्दुल्ला की अर्जी पर जारी किया है, जिन्होंने 26 अप्रैल 2018 के ट्रायल कोर्ट के हुक्म को चैलेंज करते हुए जुलाई 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट से रुजू किया था। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उनकी पत्नी पायल अब्दुल्ला के बीच चल रहे वैवाहिक विवाद के मामले में आज दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को उनकी पत्नी को 1.5 लाख भत्ता देने के लिए कहा है। साथ ही साथ उन्होंने उनके बच्चों को एजुकेशन भत्ता के लिए 60,000 रुपये हर महीने देने का आदेश दिया है। दरअसल पायल अब्दुल्ला ने 2018 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिस आदेश में ट्रायल कोर्ट ने उमर अब्दुल्ला को 75,000 रुपये और उनके बेटों को जो एजुकेशन भत्ता है 25,000 रुपये देने का आदेश दिया था। लेकिन पायल अब्दुल्ला ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करके जो भत्ता है उसको बढ़ाने की मांग की थी। आज इस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना बड़ा आदेश जारी करते हुए जो भत्ता है उसको बढ़ाया है और अब फिलहाल जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री को उनकी पत्नी को 1.5 लाख बतौर हर महीने भत्ता देना पड़ेगा और साथ ही साथ उनके बेटों को एजुकेशन जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते हैं तब तक 60,000 रुपये हर महीने एजुकेशन भत्ता देना होगा। सुशील पांडे, न्यूज़ 18, दिल्ली।